Hello everyone, welcome back, and today we are going to do revision of GK page number 46, 47 and 48. So the first question is, India has a dash history. So the answer is rich variegated history. So first king to use rockets in warfare was Tipu Sultan. So you can guess the answer first. Let me just cover the answers. So let's try this way. So the first king, उसने क्या यूज करा था? रॉकेट्स इन वॉरफेयर, वो था टीपू सुल्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज earliest known urban culture of Indian subcontinent was in Indus Valley. Then during Dash Mutiny, means during 1857 mutiny, who was the trusted general of Dash? तो who was the trusted general of Dash में क्या आएगा? Queen of Jhansi. And what was the name of that general? It was, can you guess it? Yes, it was, the name was, or he was, Tantya Tope. So the next question is, one of the largest and richest states among the princely states in pre-independence period, कौन सी थी? Can anyone guess? It was Mysore. So I hope आप अपने आंसर्स चेक कर पा रहे हो ऐसे. Then next is, Dash witnessed reigns of 8 Delhi Sultans. So who was that person who witnessed reign of 8 Delhi Sultans? He was Amir Khusro. Then during which emperor's reign was Jama Masjid built in New Delhi? So the answer is, you can recheck your answer here. Answer is Shah Jahan. And name of one Rajput princess. So Rajput princess was Jodha Bhai, and whom did she marry? She married Emperor Akbar. Then the next question is, who were the first to start joint stock company to trade with India? What is the answer? The answer is Dutch. Then there was a Mughal emperor who was deported to, तो किस जगह पे डिपोर्ट किया गया था उसको? Deported to Rangoon. And by whom was he deported? किसने डिपोर्ट किया था उसको? डिपोर्ट मतलब भेज दिया था किसी और जगह पे, ब्रिटिशर्स ने. तो ही वॉज डिपोर्टेड बाय ब्रिटिश. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एम्परर या रूलर? उनका नेम था, यू कैन चेक योर आंसर हियर, बहादुर शाह टू. देन देयर वाज वन एंशियंट यूनिवर्सिटी. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी? दैट वाज तक्षशिला. एंड उस तक्षशिला के 2 प्रोडक्ट्स थे. कैन यू रिकॉल द नेम्स? सो द प्रोडक्ट्स वर पानानी एंड कौटिल्या. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंशियंट यूनिवर्सिटी? अब यहाँ पे पानीनी गलती कर देते हैं बच्चे. इट इज़ एक्चुअली पानानी इफ़ यू रीड द बुक केयरफुली, जी के बुक. देन नेम ऑफ द एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी क्या था? तक्षशिला. देन देयर वाज अ पर्सन रामतनु, और रामतनु उसका ओरिजिनल नेम था, बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया था? तानसेन. या इसका उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन. देन महारानी ऑफ ग्वालियर कौन थी? कैन यू गेस? सो महारानी ऑफ ग्वालियर वॉज लेट राजमाता विजया राजे सिंधिया. देन विच सिटी वॉज नोन एज साकेत? साकेत कौन सी सिटी का नाम था? फैजाबाद. देन हु वॉज तांत्या टोपे? तांत्या टोपे कौन था? द आंसर इज दैट ही वॉज द ट्रस्टेड जनरल of Queen of Jhansi in 1857 mutiny. Next question is, Tipu Sultan was the first one to use Dash. He was the first one to use rockets in Dash in warfare. Then next question is, Amir Khusro witnessed the reign of Dash. So Amir Khusro witnessed the reign of 8 Delhi Sultans. Then tell the name of a Rajput princess. So the name is Jodha Bai. And whom did she marry? She married Emperor Akbar. Then during the reign of Dash was built in Delhi. So during reign of which ruler? Shah Jahan. You can check your answer. And what was built in Delhi? Jama Masjid. So the answer is Jama Masjid. Next question is, Dutch were the first to start Dash. तो डच ने क्या स्टार्ट करी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी. किस लिए?
The reason was to trade with India. Next is, there was a dash emperor who was deported to a certain place. तो वो कौन सा एम्परर था? वो था मुगल एम्परर, और उनको डिपोर्ट कहाँ किया था? रंगून. किसने डिपोर्ट किया था? बाय ब्रिटिशर्स. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एम्परर? बहादुर शाह टू. सो द एम्परर वाज बहादुर शाह टू. देन तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था? राम तनु. न्यू नेम ऑफ साकेत क्या है? फैज़ाबाद. देन विमेन के नेम बताने हैं जी हमने. तो जो है एम्पावर्ड विमेंस का चैप्टर, एम्पावर्ड विमेन के चैप्टर में, तो जर्मनी की कौन सी विमेन थी? ब्रिटिश, ईरान, इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया, इंडिया. ठीक है, तो लेट्स गो वन बाय वन. जर्मनी कौन थी? जर्मनी की एम्पावर्ड वुमन एंजेला मर्केल. ब्रिटिश वुमन कौन सी थी? मार्गरेट थैचर. तो यहाँ पे आपने स्पेलिंग्स ध्यान से लिखने, मार्गारेट दैटचर. ईरान की शिरीन इबादी. देन इजिप्ट की कौन थी? क्लियोपैट्रा. देन अलेक्जेंड्रिया की कौन सी थी? हाइपेशिया. इंडिया की कौन सी हैं? इंडिया की 2 एम्पावर्ड वुमेन हैं. वन इज विजया लक्ष्मी पंडित एंड द सेकेंड वन इज, you can check the answer, Mahasweta Devi. Then who was the social activist who fought for tribals? तो social activist जो tribals के लिए लड़ी वो थी महास्वेता देवी. Then chancellor of Germany कौन थी? तो जर्मनी की chancellor थी मर्केल, एंजेला मर्केल. एंड कब बनी थी? 2005 में. Then next question is female whose TV show took the world by storm. कौन थी? यू कैन चेक योर आंसर हेयर. ओपरा विनफ्रे. देन हु वॉज बॉर्न इन अलेक्जेंड्रिया? द आंसर इज हाइपेशिया. इंडियन फ्रीडम फाइटर कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित. देन हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यूरोपियन यूनियन की आर्किटेक्ट कौन थी? यू कैन चेक एंजेला मर्केल. हु वॉज नोन एज आयरन लेडी? आयरन लेडी कौन थी? मार्गरेट थैचर. Then first Iranian who got which prize? Can you tell the name of the prize she got? So she got Nobel Peace Prize. She was the first Iranian woman. And when did she get that? She got that in 2003. And what was the name of that lady? She was, or she is, Shirin Ebadi. And what did she fight for? किसके लिए fight करा था? She fought for human rights. देन सेकेंड डॉटर थी एक किंग की. तो सबसे पहले बताओ किंग का नाम क्या था? पटोलमी 12. किंग पटोलमी 12. उसकी सेकेंड डॉटर थी कौन? क्लियोपेट्रा. वो कहाँ की क्वीन थी? इजिप्ट की क्वीन थी. एंड देन व्हाट डिड शी यूज? शी यूज्ड हर 2 थिंग्स, हर ब्यूटी एज वेल एज हर इंटेलिजेंस. क्या करने के लिए? टू स्टे इन पावर. देन द नेक्स्ट इज फीमेल हु वॉज ब्रिटिश PM. कौन सी थी वो? मार्गरेट थैचर. एंड शी रिमेन्ड, शी वन हाउ मैनी कंसेक्यूटिव टर्म्स? 3 consecutive terms. In which century? In 20th century. Then who contributed to the field of maths? The answer is Hypatia. And Hypatia की एक और खास बात है, she was also known as first astronomer. Then 2 awards which were won by the social activist. तो सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए सोशल एक्टिविस्ट कौन सी थी. सोशल एक्टिविटीज़ थी महाश्वेता देवी, और उन्होंने 2 अवार्ड विन करे थे, जननपित अवार्ड एंड मैक्स सेसे अवार्ड. जननपित अवार्ड था 1996 एंड मैक्स सेसे अवार्ड था 1997. एंड व्हाट डिड शी फाइट फॉर? ये आपको याद रखना है, किसके लिए फाइट किया था उन्होंने? शी फॉट फॉर द राइट ऑफ ट्राइबल्स. Then extra questions of page number 48 are that UNO is a dash organization. तो यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. देन व्हेन वाज इट फाउंडेड? कब फाउंड हुई थी? तो इट वाज फाउंडेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. देखो इसमें 3 वर्ड्स याद करने वाले हैं. फाउंडेड, एग्जिस्टेंस में कब आई, चार्टर कब साइन हुआ,
तो फाउंड की गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एग्जिस्टेंस में कब आई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। चार्टर कब साइन किया था? 26 जून 1945 को। तो एज इन व्हेन आई एम स्पीकिंग द क्वेश्चंस, आंसर्स आपके माइंड में वो आ जाने चाहिए, देन यू कैन मैच द आंसर्स। देन वाई वॉज इट फाउंडेड? उसको क्यों फाउंड किया गया था? हमने बुक में पढ़ा था, पिछली वीडियोज में भी। देयर वर 3 रीजन्स फॉर फाउंडिंग दिस यूएनओ। नंबर 1 हमने क्या सीक्वेंस करी थी? MDP। M इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, D is to develop friendly relations among the nations, and P is to promote social progress. So these are the 3 points. Then when is Malala Day? Malala Day कब होता है? 12th July. When is Human Rights Day? Human Rights Day कब होता है? 10th December. Then Universal Declaration of Human Rights was adopted by whom? तो किसने अडॉप्ट किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। तो यूनाइटेड नेशंस की एक जनरल असेंबली है, उसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट की थी। कब करी थी? 10 दिसंबर 1948 को, मतलब बनने के 3 साल बाद। फिर आ गया हमारे पास नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। हाउ मेनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड? दैट इज 6। एंड हाउ मेनी आर द मेंबर कंट्रीज इन UN? 193। देन यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी फॉर पीस कहाँ पे है? कोस्टा रिका। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? टोक्यो। देन व्हेन इज UN डे सेलिब्रेटेड? तो UN डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। मेंबर कंट्रीज वी हैव डिस्कस्ड। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 193। Alright, 1 or 2 small questions of that empowered women page are left. So architect of dash, किसकी बात करी गई है उन पेजेस में? आर्किटेक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और वो कौन थी? एंजेला मर्केल। देन वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एंटरटेनर कौन है? ओपरा विनफ्रे। देन फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉमर कौन थी? हाइपेशिया, एंड शी वाज बोर्न इन अलेक्जेंड्रिया। फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली, वो कौन थी? हमारी इंडिया की विमेन विजया लक्ष्मी पंडित। देन मीडिया मोगुल हु रोज फ्रॉम पावर्टी, पावर्टी से ऊपर कौन उठी थी? ओपरा विनफ्रे। देन नेक्स्ट वील कंटिन्यू विद यूनाइटेड नेशंस वाला पेज विच इज़ द लास्ट पेज। तो इसमें थोड़े ट्विस्ट करके क्वेश्चंस हैं। सो UNO केम इनटू एग्जिस्टेंस, पहले तो ये आपको आंसर नहीं दिखना चाहिए। सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट क्या है जी? पहले तो ये बताओ। सो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या करा था? ही कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसने ये नाम बनाया था कि ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, हम उसका नाम, जो सारी कंट्रीज़ के लिए बन रही है, सारी कंट्रीज़ को यूनाइट करने के लिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसने कॉइन करा, मीन्स रखा, बनाया, सोचा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या नाम था? रामास्वामी मुदालियार। तो रामास्वामी मुदालियार का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था जी? दैट ही साइंड द UN चार्टर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए उन्होंने UN चार्टर साइन किया था। देन UNO केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब हमने पहले किया था फाउंडेड कब हुआ था? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एग्जिस्टेंस में कब आया था? 24 अक्टूबर 1945। देन हेडक्वार्टर्स कहाँ है जी? हेडक्वार्टर्स ऑफ UN, दे आर इन न्यूयॉर्क। देन हु साइंड UN चार्टर फॉर इंडिया? Ramaswamy Mudaliar. So the answer is here. You can recheck the spellings also. Next question is, who coined the name UNO? So the answer is Franklin D. Roosevelt. Next is, UN Charter was signed when? When was it signed? It was signed on 26th June 1945. Then name the document which was related to human rights, which has been adopted by United Nations. So what is the name of the document? It is called Universal Declaration of Human Rights, and this was adopted by United Nations General Assembly. अब हमने बतानी है relevance of dates. चलो जी, 12th जुलाई को क्या होता है? The answer is Malala Day. 10th दिसंबर को क्या होता है? Human Rights Day. 24th अक्टूबर को क्या होता है? United Nations Day.
26 जून 1945 को क्या हुआ था जी? तो 26 जून 1945 को यूएन चार्टर वॉज साइंड। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? यूएन केम इनटू, यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. So these were all the possible questions which have been made from 3 pages of GK book. I hope these will be helpful for tomorrow's exam. All the very best.